So your first class of history today, right? So we'll start with the rise of nationalism in Europe. Online students, are you able to hear me? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what do you understand by the word nationalism? What do you understand by the word nationalism? Oh, you are here. प्रियांशी भी है और बॉयज में अरे आप भी हो यहाँ भी है गुड गुड दैट्स गुड So what do you understand by this nationalism? Belongingness, okay. हाँ, it means patriotism या देशभक्ति की तरह, okay. So ये टाइम इस समय जो चल रहा है ना, हम बात किसकी कर रहे हैं, कब की कर रहे हैं? We are talking about 1848. And then you have a image here, a painting done by Frederick Soru. God forbid you have been given only one painting. Otherwise, this fellow has done 4 such paintings. अगर चारों दे देते तो पता नहीं सिलेबस कितना लंबा हो जाता. अच्छी बात है एक ही दिया. So if you carefully look at this painting done by Frederick Soru in the year 1848, what can you visualize? No, sit and give me the answer. Yes. Man, Charter of Rights of Man. Enlightenment. Yeah. What else can you make it out from this image? और क्या दिखाई दे रहा है आपको इस इमेज में? I'm talking about the image given on your page number 3, NCERT. Can you see there are some broken things lying in front of the people, those who are walking in a trail there? What are these broken things? Okay, impact of war. What else? They symbolize something. These broken things symbolize the end of absolute monarchism. Okay, what is monarchy? Rule of a king's rule, hereditary rule. Yes, and what is dictatorship? One person, one leader's rule. So what these broken things they symbolize end of monarchy. Now here in this picture, who are shown in the above, the top part of this image? You can make it out. Who is it? Angels. Yes. What else? Jesus Christ. वो ऊपर कैसे बेटा, हवे में कहाँ उड़ेंगे फ्रांस के लोग? नीचे है बेटा, नीचे तो है, लेकिन हवे में कौन है? Jesus Christ, angel. Yes, all these are shown at the top. अब देखो ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, द स्टैच्यू दैट दे हैव शोन हियर, इस स्टैच्यू के जस्ट यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको कौन दिख रहा है? फ्रांस दिख रहा है. The flag that you can make it out, it is having the red, white and dark blue color, navy color. That is France flag. और ऐसा माना जा रहा है कि इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से 2 कंट्रीज ऑलरेडी निकल चुकी है. वो 2 कंट्रीज कौन सी है? स्विट्जरलैंड एंड यूएसए. वैसे भी ये सारी बातें हम कहाँ की कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप एंड दिस यूएसए एंड यूएसए इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोप. यस और नो? अमेरिका तो एक अलग कॉन्टिनेंट की बात है, बट स्टिल वी आर एज्यूमिंग इट that Switzerland and USA have crossed past the Statue of Liberty.
If you just peep into the history of Switzerland, अगर roughly मैं बताऊं इसके बारे में, तो initially till 13th century it was under the Habsburg Empire's rule. But later on, what happened? And around 1848, they got freedom. They didn't get freedom from Habsburg Empire. Actually, there were some other people who were torturing them, and finally they made their own constitution. And by 1848, they had adopted their own constitution with the values such as liberty, fraternity, equality, and all those things. And if you talk about USA, you might be very well acquainted with the American freedom revolution, all that. Yes, George Washington, Boston Tea Party, all these things you might have learned in your previous classes. So America got freedom in the year 1776, and Switzerland had acquired freedom long back in the 13th century, and later on in 18th, 19th century, they made their own constitution, and even they have crossed the path of Statue of Liberty. तो इसके आगे वो निकल गए हैं. तो अब हम बात किसकी करने वाले हैं? सिर्फ वो यूरोपियन कंट्रीज की जो यहाँ इस इमेज में दी गई है. फ्रांस तो यहाँ पे स्टैच्यू के पास ही है जस्ट. तो वो क्या दिखा रहे हैं कि फ्रांस को अभी अभी लिबर्टी मिल रही है, अभी अभी आजादी मिल रही. फ्रांस के पीछे पीछे कौन आ रहा है झंडा लेकर? जर्मनी. उसके पीछे कौन है? क्यों इटली? पर आपने इटली क्यों बोला? Because if you open your NCERT page number, you are correct. Don't get worried. You are correct. But why you said Italy? That I'm asking. Page number 4 पे अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ के कुछ लास्ट 4-5 लाइंस में देखेंगे तो जर्मनी के पीछे पीछे तो ऑस्ट्रिया आ रही है. तो फिर ऑस्ट्रिया क्यों नहीं बोला आपने? इटली क्यों बोला? क्यों बेटा? उसको फ्लैग क्यों नहीं दे रही हो तुम? उसके पास भी है फ्लैग. इटली क्यों अपनी फ्लैग लेकर आ रही है? क्योंकि उस समय इटली जो थी वो ऑस्ट्रिया के किंगडम के रूल में थी. आर यू गेटिंग मी? ऑस्ट्रिया यूज्ड टू रूल ओवर द इटालियन टेरिटरी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली. और इटली के लोग क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे एंड दे वांटेड फ्रीडम. सो नाउ दे आर आल्सो होल्डिंग देयर फ्लैग एंड कमिंग बिहाइंड हूम? जर्मनी. तो ऐसे ये जो लोग है ना, इन लोगों की क्या लगी पड़ी है? लाइन लगी पड़ी है. ना सिर्फ ये 3 कंट्री बल्कि और भी यूरोप के बहुत सारे कंट्री ऐसे लाइन लगाकर इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से होके गुजर रहे हैं. क्या ये सब वाकई में हो रहा है? क्या ऐसा कोई सच में स्टैच्यू है और उसके आगे ये लोग लाइन लगा के चल रहे हैं? नो, इट्स जस्ट अ विजुअलाइजेशन. इट इज एन इमेजिनेशन. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एन यूटोपियन आइडिया. यूटोपियन का मतलब क्या होता है? इट इज टू इमेजिन समथिंग. यस, दैट्स समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट. If tomorrow morning you get up and you realize that you are no more under the pressure of standard 10th exams, board exams, आपको कोई पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं बोल रहा है, स्कूल जाना कंपलसरी नहीं है, बस खाओ पियो पार्टी करो ऐश करो, तो क्या ये अच्छा थॉट है? लेकिन आपके इमेजिनेशन में ही हो सकता है, रियलिटी में तो कभी नहीं होगा. जैसे ही आप ऐसा कुछ उटपटांग सोचोगे, आपके पेरेंट्स आपके किताबें लेकर आ जाएंगे आपके सामने और कहेंगे पढ़ाई करो. यस और नो? So that's something, a utopian thing that Frederic Sorio is imagining in this painting. Now let's move further. यहाँ जो ये Statue of Liberty है, just don't get confused with the Statue of Liberty back in America. अमेरिका में जो Statue of Liberty है, वो अमेरिका को किसने दिया था? फ्रांस के लोगों ने गिफ्ट दिया था. ओके, फ्रांस ने अमेरिका को अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे हेल्प किया था, उनके फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया था. और जब अमेरिका को फ्रीडम मिला, दैट टाइम दे गिफ्टेड देम अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. दैट इज अ डिफरेंट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. वो जो ऐसा खड़ा हुआ है ना हाथ में टॉर्च लेके, वो अलग है. ये एक अलग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है. दिस इज अ पेंटर्स इमेजिनेशन. जो आर्टिस्ट इसे बना रहा है, फ्रेडरिक सोरियो जो इसको बना रहा है ना, उसका इमेजिनेशन है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. एंड व्हाट ही हैज इमेजिन्ड कि दिस इज अ फीमेल पर्सोनिफाइड स्ट्रक्चर. व्हेनेवर यू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक लिबर्टी, और अगर आप देखो भारत माता, ये वर्ड अगर आप गूगल पे टाइप करके देखो भारत माता, तो आपको एक फेमिनिन स्ट्रक्चर दिखाई देती है. सफेद साड़ी में एक लेडी प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, उसके हाथ में एक त्रिशूल रहेगा, तलवार रहेगा, पता नहीं क्या होगा, एक मुकुट उकुट रहेगा और आजू बाजू में एक शेर बैठा रहेगा. हाँ, फ्लैग भी रहता है हाथ में. यस, तो ऐसे सारे चीजों के साथ एक फेमिनिन पर्सनालिटी आपके सामने आ जाएंगी. लेकिन दुख की कहानी ये है बेटा कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो एक फेमिनाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके हाथ में जो इसने चार्टर पकड़ा है ना, इट हैज ओनली द राइट्स ऑफ मैन, नो वुमेन.
Only men have got rights in the charter that she is holding. Are you getting me? जमाना देखो ना कौन सा है, 1848 का टाइम पीरियड है. विमेन को घर से बाहर निकलने में भी क्या थी, बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती थी उस टाइम पर. So women were not getting much rights. Women got rights in the around 19th and 20th century when there were waves of feminism. Yes or no? तो उससे पहले की बात है, तो women को तभी rights नहीं थे. So this was a feminine structure personified as Statue of Liberty, and she is holding the Charter of Rights of Man. Okay. और दूसरे हाथ में इसने क्या पकड़ा है? She's been holding the torch. Torch किसका है ये इसके हाथ में? Enlightenment का है. तो मतलब इसने ये एनलाइटनमेंट का टॉर्च क्यों पकड़ा होगा अपने हाथ में? इंडिकेट्स फ्रीडम. क्या हुआ? अब इनको गड्ढे में ना गिरे इसीलिए लाइट टॉर्च का लाइट डाल रही है ना. वो रास्ते में एक लाइन से आ रहे हैं, कहीं फिसल कर गड्ढे में गिर गए तो क्या? नाइस इमेजिनेशन. ऐसी बात तो नहीं है बेटा. इसने एनलाइटनमेंट का टॉर्च इसलिए पकड़ा है because these concepts of freedom, liberty, equality were quite new at that time. People were hardly aware of these things. इतने generation से they were ruled under the monarchical system, and now suddenly monarchy हट रही है और सब अपने अपने context में एक राजा ही है. In India, if you talk about yourself, your parents, or you talk about Narendra Modi, everyone is having equal rights. Nobody is greater or nobody is smaller. Everyone has equality in India. तो ये एक नई कॉन्सेप्ट थी, एक नई सोच थी जो उस समय लोगों के पास नहीं थी और सडनली आई थी. तो लोगों को क्या लग रहा था? एक एनलाइटनमेंट की फीलिंग लग रही. आर यू गेटिंग मी? So this was all about the painting that this fellow Frederick Soro he has made. Any doubt in this painting wala part? Online students, any doubt? No, ma'am. No? Okay. So moving further. तो यहाँ पे इटली का फ्लैग है, लेकिन इटली किसके रूल में था? ऑस्ट्रिया के रूल में था. Then after that in the text, if you see NCERT text, they have written that behind Austria there are the people of Kingdom of the Two Sicilies. अब इटली का मैप अगर आपने कभी खोल के देखा हो तो पुरानी इटली की बहुत सारे अलग अलग हिस्से हुआ करते थे. One amongst them was the Kingdom of the Two Sicilies. Now if you see the map of Italy, it is something like this. Yes or no? ऐसा ही कुछ है. And then there is a small triangular shape like here also. Then this part and this part, it is together known as Kingdom of Sicily. Okay, this was ruled by one particular king at that time. I think his name was Ferdinand. I'm not very sure. Okay. Then after that, they have mentioned Lombardy. Lombardy is again a place in the northern part of Italy. यहाँ कुछ आता है Lombardy. Then there is Poland. Poland तो आप जानते ही होंगे कहाँ है. Yes or no? Then England, Ireland, Hungary, and Russia. So Hungary, Austria, Hungary तो आजू बाजू में ही है. Yes, and Ireland and England is also similar. यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे इंग्लैंड आएगा. इंग्लैंड के आजू बाजू में एक छोटा सा एरिया, उसको क्या कहेंगे? आयरलैंड. ओके. Then ये सारे लोग उस लाइन में पीछे 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 आ रहे हैं. And who is watching them from the top? Jesus Christ and angel. Because the time period that I'm discussing here is 1848, and that's a quite olden time period. इस टाइम के लोगों को हर चीज के लिए ना भगवान का सैंक्शन लगता है. कोई भी चीज आप सोच रहे हो उसमें भगवान होंगे तो वो लोग ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते थे. अगर उसमें भगवान नहीं दिखाई देगा तो उनको लगता था कि यार ये तो चीज सही नहीं है. तो फ्रेडरिक सोरो ने ये पेंटिंग को बहुत सोच समझ के बनाई. उसने क्या सोचा, ऊपर से अगर मैं जीसस क्राइस्ट को बना दूंगा, एंजल्स बना दूंगा, तो लोगों को ये पेंटिंग देखते वक्त ऐसा लगेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, that the people those who are passing from the Statue of Liberty, they are getting a sanction, a divine sanction from the gods and gods. Okay, am I clear? अब नेशनलिज्म का मीनिंग अगर आप केयरफुली सोचो तो व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म is to create nation states. Here in Europe, they wanted to create nation states. What is nation state? Any idea what is nation state?
नेशन स्टेट, ये नेशनलिज्म वर्ड से आ रहा है, नेशन स्टेट। तो इसको क्या क्या मीनिंग क्या होगा इस नेशन स्टेट का? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, yes, common language, history, common culture, common identity. Yes. So if a group of people are having common language, common history, common culture, और उन सभी ग्रुप ऑफ लोगों को आप एक साथ लेके आओगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा? नेशन स्टेट। दैट विल क्रिएट अ नेशन स्टेट। तो यहाँ पर ये बातें क्यों हो रही है? सी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप, इस टाइम पीरियड में मैं अभी तक जर्मनी का वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया। आई हैव नॉट टेकन द नेम ऑफ जर्मनी बिकॉज एट दैट टाइम जर्मनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बिकॉज जर्मनी का क्या हाल था? जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेवरल पार्ट्स एंड इट एग्जिस्टेड अंडर द होल बिग किंगडम ऑफ प्रशिया। प्रशिया एक बड़ा सा किंगडम था और इसी प्रशिया में क्या था? छोटा 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 हिस्सा इधर उधर बटकर क्या एग्जिस्ट कर रहा था? जर्मनी एग्जिस्ट कर रहा था। आगे चल के 1871 में, मतलब लगभग 20-30 साल के बाद, बिस्मार्क नाम का एक आदमी आता है जो जर्मनी को क्या करता है? यूनिफाई करता है, यूनाइटेड कर देता है। तो वो एक अलग कहानी है। तो हम अभी किसकी बात करें? एक ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं there were different groups of citizens who were staying here and there, they were spread apart and they were not united. Basically they were not united, and इन लोगों को यूनाइट करके इन्हें क्या बनाना था? नेशन स्टेट बनाना था। तो ये नेशन स्टेट बनाना कोई आसान काम तो था नहीं। अब जैसे ही आप नेशन स्टेट की बात करोगे वैसे ही आपके सामने एक और चैलेंज आ जाता है मॉडर्न स्टेट बनाने का। अब आपने लोगों को यूनाइट किया, एक साथ ले आए, नेशन स्टेट बनाया, तो क्या फिर से आप मोनार्कियल रूल लागू कर दोगे क्या उस नेशन स्टेट पर? नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो व्हेन यू आर रिमूविंग मोनार्की, you are making a nation state. What will you strive to bring in that nation state? Equality, liberty, fraternity, new thoughts, new concepts like democracy, yes or no? And these concepts के साथ अगर आप एक state बनाओगे तो वो कैसा state हो जाएगा? Modern state, because it is having new thoughts, new ideologies. Is this things clear everyone? कुछ doubt है क्या किसी को भी? नहीं ना? ठीक। Nationalism is something wherein you think about yourself as one nation. फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रवाद की जो फीलिंग होती है ना, राष्ट्र प्रेम, पैट्रियोटिज्म एक अलग थिंग है। लेकिन नेशनलिज्म क्या होता है? लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इंडिया का झंडा दिखा दूं, ट्राई कलर फ्लैग, तो उसको देखते ही आप एक पर्टिकुलर सिंबल के साथ एसोसिएट करते हो। यू एसोसिएट योरसेल्फ विद बीइंग एन इंडियन। यही फ्लैग मैं आसाम में बैठे हुए एक बच्चे को दिखाऊं तो क्या उसमें भी यही फीलिंग्स आएंगी? आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी, बिकॉज ही इज ऑल्सो एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद दैट फ्लैग। अगर मैं यही फ्लैग किसी तमिलनाडु के बच्चे को दिखाऊं तो क्या उसमें भी नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी? यस, बिकॉज ही इज ऑल्सो एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद द कंट्री इंडिया। वैसे ही मैं राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर कहीं के भी बच्चे को दिखाऊं, हर कोई बच्चा क्या करेगा? अपने आप को उस फ्लैग के साथ एसोसिएट करेगा, उस नेशनल एंथम के साथ एसोसिएट करेगा, उस एम्बलम के साथ एसोसिएट करेगा, जो सब मिलकर क्या बताते हैं कि ही बिलोंग्स टू द नेशन इंडिया। एक तरीके से a type of unity. Bringing a feeling of nationality, it is a feeling. अब आप सैड होते हो तो सैडनेस भी क्या है? एक फीलिंग है। क्या एक फीलिंग को आप कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर दे सकते हो? नहीं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। सो नेशनलिज्म भी क्या है? अपने आप में एक फीलिंग है। वो ऐसा कोई चीज नहीं है इस मार्कर की तरह कि मैं कहूँ कि हाँ ये नेशनलिज्म है। हर किसी के पास अगर ये मार्कर होगा तो वो नेशनलिज्म होगा, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। यस और नो? सो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। अगर आप इंडिया का फ्लैग भी देख रहे हो, नेशनल एंथम भी सुन रहे हो, सारे जहां से अच्छा गा रहे हो, लेकिन आपको देश के लिए कुछ फीलिंग ही नहीं है, तो क्या आपके अंदर नेशनलिज्म है? नहीं है। दैट इज हाउ इट कैन बी डिस्क्राइब्ड। नेशनलिज्म इट हैज नो सिनोनिम। ओके, आप किसी सिनोनिम के साथ उसको एसोसिएट नहीं कर सकते। वननेस, हाँ, अगर चाहिए आप कह सकते हो वननेस। यस,
किसका वननेस? दोज पीपल हु आर शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री एंड कॉमन कल्चर। देन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वननेस की फीलिंग थी या नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो क्या अचानक से एक दिन में आ जाएगी क्या इन लोगों में? नहीं, because for generations together they have been ruled by a monarch, they have been ruled by a ruler or a king. Now suddenly if you ask them to all assemble in one circle, and if you say that this circle is, oh, people are speaking here German language, they are having common history, they are all eating German food, then these people are German. If you tag them like this, will they agree to this tag which you have given them? No, क्योंकि आज तक वो किसके अंडर थे? अलग अलग जगह में बिछड़ के रह रहे थे अंडर डिफरेंट मोनार्क्स। सो सडनली ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में नहीं आने वाली थी। इस नेशनलिज्म की फीलिंग को किसको लाना था? इन अलग अलग लीडर्स को, those leaders who fought for their rights, those leaders who fought in order to make their country a nation state, those leaders who tried to bring modern state theories in these areas. इन लीडर्स का ही ये काम था कि वो वहां के रहने वाले लोगों में क्या जगाए? नेशनलिज्म की फीलिंग जगाए। Are you getting me? Any doubts till this part? No? Okay. Let's move further. अब अगर आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 को देखते हैं तो वहां पे आपको एक इमेज दिखाई देगी। पहले इमेज में, दैट इज टू योर लेफ्ट हैंड साइड, द इमेज दैट इज गिवन, दैट इज अबाउट द बैस्टाइल फोर्ट। बैस्टाइल फोर्ट को किस तरह से स्टॉर्म किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो इमेज वहां पे दी गई है, और उसके बगल में जो दूसरी इमेज है, इट इज अबाउट अ फोर्ट इन जर्मनी, सम फोर्ट इन जर्मनी। सो व्हाट दिस जर्मन पीपल आर एज्यूमिंग कि जिस तरह से फ्रांस में स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टाइल हुआ, इसी तरह के का कोई किला जर्मनी का पे जब टूटेगा ना, तब जाके हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? रेवोल्यूशन होगी, और हमें भी क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी। सो बैस्टाइल फोर्ट की स्टॉर्मिंग एक तरीके से क्या बन गई? इट बिकेम अ सिंबल, it became a symbol for freedom, it became the symbol for fraternity, liberty, the thoughts to make a modern state or a nation state. Okay, so बाहर गांव के लोग यानी अलग अलग कंट्रीज के लोग इस बैस्टाइल फोर्ट को देखकर अपने लिए भी ऐसे सपने देखने लग गए कि हमारे जर्मनी में भी कभी ना कभी कोई एक किला टूटेगा और उसी के साथ हमको क्या मिलेगी? इंडिपेंडेंस मिलेगी। Are you getting me? Things are clear? Yes. Moving further. 1789 में फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। What indicates the start of French Revolution? Storming of the Bastille Fort. तो बैस्टाइल के किले को वही क्यों स्टॉर्म किया गया था? It was a symbol of the despotic rule. What else? बैस्टाइल के किले को क्यों तोड़ा गया था? रिवाइज योर 9th स्टैंडर्ड सिलेबस। अफवाह फैली थी ना, फैली थी कि नहीं? एक अफवाह फैली थी। अफवाह क्या थी? कि राजा क्या कर देगा? सबको दूध भेज के मरवा देगा। यस, दैट वाज अ रूमर। और इसी रूमर के चक्कर में लोगों ने क्या कर दिया? हथियार लूटने के लिए बैस्टाइल फोर्ट पर स्टॉर्मिंग कर दी और वहां से वेपन्स चुरा लिए, और उसी चुराए हुए वेपन्स के साथ वो किसका सामना करने जाने वाले थे? सोल्जर्स, किंग के भेजे हुए सोल्जर्स। लेकिन क्या किंग ने कोई सोल्जर्स भेजे थे? नहीं। सब कुछ क्यों हुआ? सिंपली बिकॉज ऑफ अ रूमर दैट वाज स्प्रेड। ओके, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होता है। लोगों ने आपस में क्या बनाई? ईस्टेट जनरल को खत्म किया। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज दिस ईस्टेट जनरल? 3 स्टेट्स थे ना, कौन से 3 स्टेट्स थे? क्लर्जी और कॉमनर्स लिख लो, ठीक है, इजी रहेगा कॉमनर समझने में। तो आपके पास 3 स्टेट हुआ करते थे, 1, 2 एंड 3। वोटिंग राइट्स किसके पास थे? सबके पास थे बेटा, सबके पास वोटिंग राइट्स थे, लेकिन सबको कितना था? सबके पास एक एक ही वोट हुआ करते थे। अमीर कौन थे इन तीनों में से? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। गरीब लोग कौन थे? कॉमनर्स। टैक्स कौन भरता था? कॉमनर्स। क्या क्लर्जी एंड नोबिलिटी टैक्स पे करते थे? नहीं। ये सारा स्टेट जनरल था। स्टेट जनरल में हर ग्रुप को कितने कितने वोट्स थे? एक एक वोट। क्लर्जी के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? नोबिलिटी के 300, कॉमनर के 600, थर्ड स्टेट के 600।
लेकिन अगर आप गौर से देखो, अगर इतने लोगों की रिप्रेजेंटेशन के साथ भी अगर आप एक एक ही वोट सबको दोगे, तो 2 वोट्स किसके हो गए? इन अमीरों के ही तो हो गए ना, क्लर्जी एंड नोबिलिटी के। तो हमेशा मेजोरिटी में कौन जीतेगा? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी कॉमनर्स यानी थर्ड स्टेट तो क्या हो जाएगी? हमेशा हर वोटिंग में हार ही जाएगी, क्योंकि उनके पास कितने वोट थे? जस्ट 1 सिंगल वोट। तो ऐसे में क्या हो गया? लोगों को गुस्सा आया। लोगों को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या लिखा? 40,000 लेटर्स लिखकर राजा को दिए थे। उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो आपका सिस्टम है ना, हाँ वो बदल के 1 पर्सन 1 वोट करो। लेकिन राजा ने नहीं किया। राजा से गुस्सा होकर थर्ड स्टेट के लोग क्या हो गए? उसकी असेंबली छोड़कर वहां से चले गए। और फिर इन्होंने स्टेट जनरल को बदल कर क्या कर दिया? नेशनल असेंबली बनाई। ऑल दिस इज फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड सिलेबस, यस और नो? नेशनल असेंबली बनाई। इस नेशनल असेंबली ने फिर क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। लेकिन इसमें भी क्या हो गया था? सारे राइट्स किसको दे दिए गए थे? अमीरों को ही मिल रहे थे। घूम फिर के जो पहले था सिचुएशन, वही सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में भी दिख रहा था। तो गरीबों की यानी कॉमनर्स की, कोई थर्ड स्टेट की कोई कुछ सुन ही नहीं रहा था। सारे राइट्स किसको मिल रहे थे? अमीरों को ही मिल रहे थे, नोबल्स और क्लर्जीज को ही मिल रहे थे। तो फिर से लोग क्या हो गए? भड़क गए। इन्होंने क्या किया? इस कॉन्स्टिट्यूशन का अपोज करने के लिए पॉलिटिकल क्लब बनाए। डू यू रिमेम्बर पॉलिटिकल क्लब कौन सा था? जैकोबिन। जैकोबिन क्लब को किसने बनाया था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नेशनल असेंबली के लीडर्स कौन थे? नहीं, वो तो फिलोसोफर है। एबेसियस एंड मिराबिउ। याद आया? नेशनल असेंबली के लीडर्स वो दोनों थे। एबेसियस तो क्लर्जीमैन था और मिराबिउ क्या थे? नोबलमैन थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कॉमनर्स का यानी थर्ड स्टेट का साथ देके नेशनल असेंबली बनाया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत बनाया। तो उसके रिजल्ट में क्या हो गए? पॉलिटिकल क्लब्स जैसे जैकोबिन क्लब जैसे क्लब्स बने। और इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया। उसमें वो रॉबेस्पियर भी एक नमूना ही निकला। उसने क्या किया? पहले तो गुड बॉय बन के घूम रहा था, फिर अचानक से क्या हो गया? बैड बॉय बन गया। उसने हर कोई जिसका विरोध कर रहा था उसको पकड़ के क्या कर दिया? मरवा दिया। तो अच्छी खासी अपनी इमेज को खुद ने ही क्या कर दी? तोड़ दी, बिगाड़ दी। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, सारा पावर्स एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट करके नहीं देना चाहिए, हम तो डायरेक्टरी बनाएंगे। पावर्स को डिवाइड कर देंगे, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ दे देंगे। पावर्स डिवाइड कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं निकला। सारा कुछ क्या हो गया था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा किसने उठाया? नेपोलियन। नेपोलियन ने इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया और उसने क्या किया? फ्रांस पर पूरा कब्जा कर लिया। पहले तो नेपोलियन भी गुड बॉय था। उसने कहा था कि यार मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, सब अच्छा करूंगा। डेमोक्रेसी के बड़े बड़े सपने दिखा रहा था। फिर अल्टीमेटली उसने भी क्या कर दिया? मोनार्की के रंग दिखाए। आर यू गेटिंग? ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने पिछले क्लास में? Yeah, he made the Napoleon Code. We are going to study about it. और वो भी नेपोलियन कोड उसने कहाँ पे अप्लाई किया? ओनली इन फ्रांस। बाकी कंट्रीज में भी ले गया था, लेकिन इन दोज अदर कंट्रीज आल्सो he showed his tyranny by bringing back monarchy and the people got fed of him. Then आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेपोलियन तक की कहानी आपने पढ़ी थी। अल्टीमेटली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है और सारे वापस से जो मोनार्कियल रूल्स थे वो अपने पावर को रीइंस्टेट कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी, जब नेशनल असेंबली बनी थी या रेवोल्यूशंस हो रहे थे, so what these revolutionaries in the France, what they did, they tried to cultivate the feeling of nationalism in the minds of the people. अचानक से फ्रांस तो एक नहीं बनने वाला था, काफी टाइम लगने वाला था फ्रांस को एक बनाने में। तो इसी फीलिंग्स को लोगों के अंदर लाने के लिए रेवोल्यूशनरीज ने कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए लोगों के अंदर ला पैट्रियट एंड ले सिटोयन नाम की 2 चीजें इंट्रोड्यूस की। Just excuse me for my wrong pronunciation, but I can't do anything. That's in French. These are French words, so I might be pronouncing it wrong, but you just have to remember the terms. Citoyen.
सो ला पैट्री का मतलब क्या है? फादरलैंड। हमारे लिए इंडिया क्या है बेटा? मदरलैंड। इन लोगों के लिए फ्रांस क्या है? फादरलैंड। कुछ भी रखो, सिस्टरलैंड, ब्रदरलैंड, कजन लैंड, पर है लैंड तो है, तो इन्होंने फादरलैंड नाम दिया। ले सिटोयन का मतलब क्या है? सिटीजन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सिटीजन? People of the country who identify themselves with that country, and the country also identifies with their people staying in that country. Okay, so citizen एक बहुत ही वाइड टर्म है, जिसमें सिर्फ एक आधार कार्ड होने से सिटीजन नहीं हो जाता। यस और नो? सिटीजन के लिए उस कंट्री के साथ अपने आप को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। एक क्लास में मैंने पूछा सिटीजन क्या है, मतलब बोलते हैं पासपोर्ट मिलता है सिटीजन बनने के। पासपोर्ट से जोड़ रहे थे वो लोग सिटीजन। चलो, सो ये दोनों आइडियाज इन्होंने दिए। रेवोल्यूशनरी लोगों ने कहा कि अब हम रेवोल्यूशंस ले आए हैं, मोनार्की को हटा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, लोग अपने आप को फ्रांस के साथ जोड़े, उसे अपना देश समझे और एक सिटीजन बनकर यहाँ पे रहे। Besides that, what else they did? They gave equal rights to everyone. उन्होंने पहले जो फ्लैग था उस फ्लैग को हटा दिया, एक रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटा के क्या कर दिया, ट्राई कलर का फ्लैग ले आए। What else did they do? लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज तो आगे आएगा बेटा, उससे पहले की बातें कर ले। उसके पहले उन्होंने और क्या किया था, स्टेट जनरल को भी हटा दिया और क्या पिक्चर में आ गई, नेशनल असेंबली पिक्चर में आ गई। फिर क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी ले आए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? What is central administrative system? Same laws for all citizens. Yes, to certain extent, that's correct. Same laws. अगर आप एक क्राइम गुजरात में करते हो, वही क्राइम अगर आप महाराष्ट्र में करोगे तो आपको अलग अलग क्राइम का पेनल्टी तो नहीं मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ऐसा नो, बिकॉज द क्राइम का नेचर क्या है, सेम है। So depending upon the offense that has been committed, the penalty is set and that is same throughout the country. Common code है. Then what else can you associate with a centralized administrative system? अगर आप अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड की तरह आधार कार्ड को महाराष्ट्र में इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्या यही आधार कार्ड को आप हरियाणा में भी इस्तेमाल कर सकते हो? Yes, हर जगह पे all over India you can use that. So that centralized administrative system. Now what else they did? They gave different hymns, oaths and martyrs were commemorated. What does that mean? हिम्स का मतलब है छोटे छोटे एक या दो लाइन में किसी कंट्री के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना। ओके, देन ओथ क्या है? ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी है आप लोगों ने? किसकी होती है ओथ टेकिंग सेरेमनी? यस, अ पोस्ट, हाई पोस्ट, समथिंग लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, इन सभी पोजीशन के लिए क्या होता है, शपथ ग्रहण करने की एक सेरेमनी होती है, दैट इज, हाँ शपथ विधि होती है। तो दैट ओथ टेकिंग सेरेमनी, ओथ क्रिएट किए इन लोगों ने। और क्या किया इन्होंने, शहीदों के बारे में अच्छा अच्छा बोला। अब जो शहीद है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट भगत सिंह, वी फील सो प्राउड, वी इंडियंस आर सो प्राउड व्हेन वी टॉक अबाउट भगत सिंह बिकॉज ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। यस और नो? सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी अप्रिशिएटेड. That is why these people also in France, they gave examples, they gave different ideas about these martyrs. फिर और क्या किया उन्होंने, they gave uniform laws that we discussed. Then they abolished or they reduced internal custom duties. What is custom duties? Any idea what is custom duty? मान लो आप एक कंट्री में हो, लेट्स टेक दिस कंट्री एज एक्स, दूसरा कंट्री कौन सा है, वाई. From X country you want to take some goods, something that you have, you are a trader and you want to take these goods and you want to sell it in country Y. So Y country क्या करेगी, आपको कुछ टैक्स का अमाउंट लगाएगी। यस और नो? फुकट में तो अपना मार्केट खोल के नहीं देगी, आ बेच, मेरे पास वैसे भी खरीदने के लिए लोग बहुत सारे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोलेगी। इट विल आस्क यू टू पे सम टैक्स एंड दैट टैक्स इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी. अब ये तो ओके है, व्हेन यू आर ट्रेडिंग बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज यू आर डूइंग ओवरसीज ट्रेडिंग, दैट टाइम इट इज ओके. बट अगर आप इंडिया के इंडिया में ही ट्रेड करने के लिए भी अगर कस्टम ड्यूटीज पे करने लग गए तो क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? और उस समय फ्रांस में ऐसा ही था.
एक जगह से दूसरे जगह भी निकलो तो क्या हो जाता था, रूलर चेंज। तो रूलर चेंज तो क्या हो जाएगा, वी विल अगेन आस्क फॉर कस्टम ड्यूटीज। यस, सो टैरिफ बैरियर्स, कस्टम ड्यूटीज, ये बहुत ज्यादा थे, तो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन इंटरनल कस्टम। या इंटरनल ट्रेड, जो इंटरनल ट्रेडिंग हुआ करती थी एक कंट्री से, यहाँ अगर मैं नवी मुंबई में खारघर से पनवेल जाऊं तो भी मुझे ट्रेडिंग में कस्टम ड्यूटीज लगने लग गए तो कोई ट्रेड ही नहीं होगा। यस और नो, दैट्स व्हाट इट वाज। देन आगे बढ़ते हैं, व्हाट एल्स दे हैव गिवन। यस, वेट्स एंड मेजरमेंट्स एंड करेंसी जो थी वो सबको क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। पहले बहुत सारे अलग अलग करेंसी हुआ करते थे। इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कम टू नो देयर वर अराउंड 30 डिफरेंट करेंसीज। एक छोटको से जर्मनी में इतना 30 करेंसी कौन बदलेगा रे बाबा। यस और नो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओ तभी भी फॉरेन एक्सचेंज करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो एक ही जर्मनी वाले हिस्से में अगर आप इतने सारे अलग अलग करेंसीज रखोगे, 30 डिफरेंट करेंसीज, सो इट इज अ वेरी हेक्टिक थिंग। Weights के बारे में भी in the later part of the chapter you will have certain examples that I'll explain you as and when they come. Regional dialects were abolished. Now in India, if you see, महाराष्ट्र में क्या है, मराठी लैंग्वेज ज्यादा चलती है। If you talk about Gujarat, then गुजराती लैंग्वेज चलती है। अगर आप केरला के बारे में बात करो तो मलयालम ज्यादा चलता है। So these are the regional dialects that are spoken in these particular areas. But फ्रांस ने क्या कह दिया, that no regional dialects will be allowed। हर कोई कौन क्या बात करेगा, फ्रेंच लैंग्वेज ही बात करेगा। हर कोई अगर कुछ लिख रहा है तो किसमें लिखेगा, फ्रेंच में ही लिखेगा। So that was made compulsory. Why? Because they wanted to bring the feeling of nationalism in the minds of their people. Are you getting me? Then अब इनकी नैया खुद की तो संभल नहीं रही है कि ये दूसरों की नैया को डूबते हुए बचाने जाना चाहते थे। That is, these revolutionaries, they not only wanted to bring these changes in France, but at the same time they wanted to bring these changes in the other countries. अरे पहले अपने फ्रांस का तो डूबती नैया बचा लो। अभी अभी तो फ्रांस में ये सब कर रहे हो तुम लोग, लेकिन नहीं, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कहाँ चल पड़े, अलग अलग दूसरे कंट्रीज में भी चल पड़े। और ये चलने वाले कौन थे, सोल्जर्स थे। सोल्जर्स से पहले तो क्या आया बेटा उनके पास, जैकोबिन क्लब का आइडिया आया। जो जैकोबिन क्लब्स बने थे वो इतने ज्यादा फेमस हो गए that they were not just restricted to France but they started spreading to other parts of Europe. And when जैकोबिन क्लब का आइडिया अलग अलग जगह पे स्प्रेड हुआ और उसके बाद जब नेपोलियन अपनी सेना लेकर दूसरे कंट्रीज में दूसरे टेरिटरीज को जीतने के लिए वॉर करने जाता था, तब भी उसके जो ट्रूप के मेंबर्स थे, जो आर्मीज थी, वो भी इन अलग अलग थॉट्स को क्या करती थी, स्प्रेड करती। तो क्या स्प्रेड होने लग गया, न्यू डिफरेंट थॉट्स ऑफ लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड। ये सारी चीजें कहाँ कहाँ स्प्रेड हो गई। अब सिर्फ फ्रांस में नहीं थी ये सारी बातें, दे गॉट स्प्रेडेड टू इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, प्रशिया, सब जगह पे क्या हो रहा था, ये चीजें स्प्रेड हो रही थी। और ये आइडिया सच में ना इतनी अच्छी थी कि लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया इनसे। इनको लगा अरे वाह ये क्या मस्त आइडियाज है। और इसी के साथ साथ नेपोलियन के जो लोग थे, इनके जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि नेपोलियन ने तो फ्रांस में सिविल कोड दिया है। क्या दिया है, सिविल कोड। कब दिया था ये सिविल कोड, 1804 में दिया था। और इस सिविल कोड के अंदर उसने क्या किया था, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक code. And in this civil code, what he did, beta, he removed all those rights and privileges that were based on the birth. तो पहले ही हमने देखा था उस ट्रायंगल में that voting rights were given only to nobles and clergy, but now it was removed and everyone got voting rights. उस समय जो प्रॉपर्टी था ना वो भी हर कोई अवेल नहीं कर सकता था। देखो आज के डेट में अगर आप एक जमीन खरीदना चाहते हो, what thing is mainly needed, you should have money. Once you have money, you go and you pay to the person who is ready to sell the land. You become the buyer, he is ready to sell the land, you purchase the land and land is yours. Yes, no country, no government, no person can question about your right on that land then. But उस समय में वैसा नहीं था। उस समय में कोई भी जमीन आप अगर खरीदते भी हो तो भी राजा का मन हो गया तो वो आके तुमसे ले लेगा। Are you getting me? तो राजा क्या है, एक एब्सोल्यूट रूलर है, वो अपनी मनमानी हर जगह पे करता फिरेगा। तो इसी तरह लोगों को उस समय
प्रॉपर्टी अपने पास रखने की राइट नहीं होती थी, पर नेपोलियन ने क्या कहा, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एंड ही गेव पीपल द राइट टू प्रॉपर्टी. What else he did? He established equality before the law. Yes, he removed feudal system. What else he did? Feudal system जानते हो ना? What is feudal system? In the context of see, this is the thing. Online students, would you like to explain what is feudal system? Anyone? Sanmitra and Anshul. Yes. Yes, of course. पैसे पे तो सब घूमता है ना बेटा. No. Tax, yes. Elaborate. कौन सा tax? Yes. Okay, I'll tell. King के पास क्या है? King has all the land. अब किंग सारा लैंड अपने पास ही रखेगा तो खाएगा क्या? Yes or no? So he'll have to naturally distribute the land to different people. So what the king is doing, he is giving land to different people. So he gave land to dukes and duchess. Do you understand what is dukes and duchess? Not clergy. Dukes and duchess are the prince and princess. अपने बच्चों को ही देगा ना बेटा. लैंड जो है वो डिवाइड करके किसको देगा? अपने बच्चों को देगा या अपने रिश्तेदारों को देगा, चचेरे भाई को देगा. यस और नो? ड्यूक्स एंड डचेस क्या करेगा? वो राजा राजकुमार सब जाके उधर मिट्टी में काम करने वाले हैं क्या जमीन पे? नहीं. वो किसको देंगे? वो अपने सर्वेंट को देंगे. अर्ल्स एंड बेरॉन्स. ये अर्ल्स एंड बेरॉन्स आगे फिर किसको देंगे? नाइट्स को देंगे. नाइट का इमेज तो आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत कॉमन होता है. एक घोड़े पे एक पगला सा आदमी बैठा रहता है, उसके हाथ में स्वॉर्ड रहता है, उसके टोपी रहती है, वो टोपी भी हिलती रहती है. यस, ऐसा ही एक इमेज रहता है नाइट का. ये नाइट आगे चल के ये लैंड किसको देता है? पेजेंट्स को. दैट इज द फार्मर. फार्मर को देता है. और ये फार्मर सब क्या करेंगे? खाना वगैरह ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रो करेंगे. इसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उनसे कौन छीन लेगा? नाइट्स. और ये ग्रो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न, they are getting a small hut to stay and 2 times food to eat. That is why they are working so hard. They are toiling on that farmland, and whatever produce comes, that is taken away by the night. And night they'll keep some money out of that produce in the context of spending that money on the army that they are maintaining, and the remaining amount of money they'll return it to earls and barons. अर्ल्स एंड बैरॉन्स भी क्या करेंगे? उसमें से थोड़ा पैसा अपने पास रखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, और बाकी का पैसा किसको दे देंगे? ड्यूक्स एंड डचेस को. ड्यूक्स एंड डचेस भी अब थोड़ा सा पैसा क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, और बाकी का पैसा किसको देंगे? किंग को. अब बीच के इतने सारे एजेंट अगर पैसा खा लेंगे तो किंग के पास पैसा पहुंचेगा? बहुत कम पहुंचेगा. यस और नो? जितना पहुंचना चाहिए था उतना तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये सारे इतने ईमानदार तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही पैसा खा लेंगे बीच में. यस और नो? तो ऐसे में ये आर्मी मेंटेन करने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारा पैसा खा लिया और किंग को बहुत कम पैसा गया, और इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? फ्यूडल सिस्टम. आर यू गेटिंग मी नाउ? तो ये फ्यूडल सिस्टम को किसने हटाया? नेपोलियन ने. अब नेपोलियन क्या बोलता है? ये सारे लोग मुझे नहीं चाहिए आर्मी रखने के लिए, मैं अपनी आर्मी खुद रखूंगा. क्या बोला नेपोलियन ने? आई विल मेंटेन माय ओन आर्मी. किंग को हटा दिया, बाकी के लोगों को भी हटा दिया, और नेपोलियन ने कहा कि मेरी आर्मी मैं खुद मेंटेन करूंगा. और इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसको पैसे तो चाहिए. आर्मी को क्या करनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी. तो सैलरी के लिए पैसा नेपोलियन के पास कौन देगा? डायरेक्टली पेजेंट्स. पेजेंट्स क्या करेंगे? They will work on the land, they will give agricultural produce, they'll sell the agricultural produce themselves. Whatever profit they will be getting, they will pay the tax to Napoleon. और इसी टैक्स के पैसे से वो क्या करेगा? आर्मी मेंटेन करेगा. उसको ये सारे बीच के एजेंट्स या बीच के बिचौले नहीं चाहिए. ऐसा करके उसने क्या कर दिया? पूरा मोनार्की और पूरी नोबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया. देन इन इस तरीके का फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड
He also abolished the manorial dues. Now, what is a manor or manor? What do you say? Mansion. एक बड़ा सा घर रहता है ना, एक बड़ा सा बंगला, उस बंगले के आसपास एक बड़ा सा गार्डन, उस गार्डन के आसपास एक बड़ी सी खेत, उस खेत में ही एक छोटी सी तालाब, उस तालाब में एक छोटा सा बोट। खैर बहुत हो गया इमेजिनेशन। ये सब क्या है? ये सब एक बड़ा सा मैनर। और इस मैनर में क्या होता था, एक छोटे छोटे सर्वेंट क्वार्टर्स भी होते थे। इन सर्वेंट क्वार्टर्स में servants used to work. They used to go and work in these different areas that had been distributed to them. Whatever the money will be collected, that will be taken away by the nobleman who will be the head or the in charge of this manor or this mansion. Okay, clear? तो ये भी क्या कर दिया नेपोलियन ने, इस सब को भी हटा दिया, बंद कर दिया, कहा कि नहीं ये सब नहीं चलेगा। सभी लोग टैक्स जो आएगा वो सीधा किसको पे करेंगे? मेरे को पे करेंगे। और दूसरा उसने क्या बोला पता है? अगर आपको जमीन चाहिए ना, खेती करने वाली जमीन आपको आपके नाम पे चाहिए, तो चलो खुद जाओ और जाके खेती करो। ऐसा बोला नेपोलियन ने। नेपोलियन ने कहा अगर तुम अपने खेत में खेती कर रहे हो तो ही वो खेत तुम्हारी रहेगी, और नोबलमैन के तो खेती क्या, मुझे तो धूप में 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो जाएगा। तो खेती सारी किसके नाम पे हो गई? फार्मर्स के नाम पे। जो उस पर काम कर रहे थे उनको उनकी जमीनें मिल गई। अब और क्या किया उसने? ही ऑल्सो रिमूव द गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। व्हाट इज गिल्ड? व्हाट इज अ गिल्ड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू टेल व्हाट हु इज अ गिल्ड? व्हाट इज अ गिल्ड? होता क्या है ये? व्हाट इज अ गिल्ड सिस्टम? नो आइडिया? ओके, आई विल टेल। सपोज इस क्लास में ये जो फर्स्ट रो पे 4 बच्चे बैठे हैं, all 4 of you are traders, okay, and I am that cruel king Louis XVI. Okay, now you 4 traders are supposed to pay your tax, annual tax, okay, on whatever trading you have done. पहले दिन ना मेरे पास ये आती है, तो मेरा ना मूड बहुत खराब था। I am Louis XVI, no, मेरा मूड बहुत खराब था। She comes, she tells me that King, I did a total profit of 50,000 rupees this year. Now tell me what tax I have to pay. Then I am in a bad mood. I tell her, चलो 40,000 का टैक्स भरो और जाओ। अब 50,000 ही तो इसने कमाया था, उसमें से मैंने 40,000 का क्या ले लिया? टैक्स ले लिया। 10,000 ही बेचारी के पास बचा, वो रोते रोते घर गई। अगले दिन ना मेरे पास ये आ, मेरा मूड बहुत अच्छा था इसको देखकर। मैंने उससे पूछा कि भाई तूने कितना प्रॉफिट किया है? He tells me I also made 50,000 का प्रॉफिट। इस बार तो सभी ट्रेडर्स का लगभग इतना ही हुआ है, मेरा भी 50,000 ही हुआ। तो मेरा मूड अच्छा था। मैंने उससे कहा चल 5,000 का टैक्स भर और तू अपने घर जा सकता है। तो उसने 5,000 का टैक्स भरा, वो चला गया। थर्ड डे मेरे पास ये आता है, मेरा मूड फिर से खराब। मैं उसको देखती हूँ कितना हुआ तेरा प्रॉफिट? वो बोलता है 50,000 का ही हुआ। मैंने उसको बोला चल 55,000 भर टैक्स और जाके भर। तो उसके पास 5,000 पीछे से बचे और 55 तो पूरा उसने टैक्स ही भर दिया। फिर ना फोर्थ डे मेरे पास दिया आती है और मैंने दिया से पूछा, दिया है ना तेरा नाम? चलो याद है मुझे। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा कितना इनकम है? तो शी सेज मेरा 50,000 का इनकम हुआ। तो मैं उसको बोलती हूँ चल 30,000 पे कर और तू जा, योर टैक्स इज 30,000। सो व्हाटएवर आई डिड जस्ट नाउ, इज दिस अ फेयर डील? नो, आई एम चार्जिंग एवरीवन विद डिफरेंट टैक्स। बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। एज a king should have kept a fixed tax, let's say 10% of whatever you earn or 5% of whatever you earn। तो हर किसी को क्या होता था, फिर एक फिक्स टैक्स 5,000 का सब पे करते थे। बट ऐसा नहीं किया किंग ने। किंग ने क्या किया, उसने सबसे अलग अलग टैक्स लिए। लेकिन अब इस चीज को काउंटर अटैक करने के लिए सारे ट्रेडर्स ने मिलकर क्या किया, अपना एक गिल्ड बनाया। सारे ट्रेडर्स ने क्या किया बेटा, अपना एक गिल्ड बनाया। इन टूडेज लैंग्वेज यू कैन कॉल इट एज अ यूनियन। यूनियन होता है ना, रिक्शा वाला का यूनियन, टैक्सी ड्राइवर का यूनियन। तो ये ट्रेडर्स के यूनियन को हम क्या करेंगे, गिल्ड करेंगे। और ये गिल्ड सब क्या करेंगे, आपस में किसी एक या दो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और यही रिप्रेजेंटेटिव्स अपने सारे ट्रेडर दोस्तों से क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट इकट्ठा करेंगे और वो ले जाकर किसको दे देंगे, किंग को दे देंगे।
तब क्या किंग सबसे अलग अलग टैक्स चार्ज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट जब लुई 16 का टाइम पीरियड था, ही हैड पुट अ रेस्ट्रिक्शन इन मेकिंग दीज गिल्ड्स। वो कहता था कि ऐसे गिल्ड बनाना ही नहीं है, मैं सबसे एक एक करके इंडिविजुअली ट्रेडर्स से टैक्स कलेक्ट करूंगा। Are you getting me? So he had put restrictions on making this guild. पर जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया? उसने कहा बनाओ भाई गिल्ड बनाओ, मैं हटा देता हूँ सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेकिंग गिल्ड। आर यू गेटिंग मी? तो अब नेपोलियन के टाइम में लोगों ने क्या किया? ट्रेडर्स ने गिल्ड बनाया, अपने में से ही किसी एक या दो को रिप्रेजेंटेटिव चुना, सारा टैक्स एक जगह पे पूल किया और ले जाके किसको दे दिया? किंग को दे दिया। आर यू गेटिंग मी नाउ? अब ये सारी जो अच्छी अच्छी बातें थी ना, वो बहुत जल्दी कहाँ स्प्रेड हुई? डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, आयरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सारे कंट्रीज में नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड की अच्छी अच्छी बातें स्प्रेड हो गई। तो ये सारे कंट्रीज के लोग बोले अरे वाह, ये नेपोलियन तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये नेपोलियन को हमारे भी कंट्री में आना चाहिए। ओके, तो उन्होंने क्या कहा? आर्मी को बुलाया, आजा आजा नेपोलियन, तू हमारे पास आजा, तू अगर हमारे कंट्री में आएगा तो हमारे यहाँ का दुष्ट राजा को मार मार के भगाएगा, और अपने साथ आएगा तो अपना ये सिविल कोड भी ले आएगा, और जब सिविल कोड ले आएगा तो ये सिविल कोड तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, और हमारे भी क्या आ जाएंगे? अच्छे दिन आ जाएंगे हमारे। ऐसा किसको लग रहा था? बाकी कंट्रीज को लग रहा था, इटली, नेदरलैंड, जर्मनी, इन सबको लग रहा था। और इन्होंने बहुत खुशी से नेपोलियन को क्या किया? नेपोलियन की आर्मी को अपने कंट्री में आने दिया, अपने यहाँ के जो मोनार्क्स थे उनसे फाइट करने में हेल्प करी, अपने यहाँ के मोनार्क्स को हटाने में हेल्प करी। और जब नेपोलियन आके वहां पर राज करने लग गया तो नेपोलियन गुड बॉय से क्या बन गया? बैड बॉय। क्या किया नेपोलियन ने? नेपोलियन ने उनको सिविल कोड तो दिया, नेपोलियन ने उनको सिविल कोड दिया, उनको ये नए नए आइडियाज दिए, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, उनके यहाँ पे भी प्रॉपर्टी राइट्स दिए, उनको भी इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया। बट उसके साथ साथ उसका जो भी सारा हम्बलनेस था, उसका जो भी सॉफ्ट कॉर्नर था, दैट वाज ओनली टुवर्ड्स हिज ओन मदरलैंड, दैट वाज फ्रांस। व्हाई वुड ही कीप सच अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीज अदर कंट्रीज? उसने इन अदर कंट्रीज के साथ कुछ ऐसी चीजें की जो इन कंट्रीज को अच्छा नहीं लगा। वो चीजें क्या की? जरा देखते हैं। कहाँ कहाँ पे इसको स्वागत करके बुलाया गया था? ब्रुसेल्स में बुलाया गया था। वेयर इज दिस ब्रुसेल्स? बेल्जियम का कैपिटल है ना, है कि नहीं? हाँ, ओके। देन मेन्स में बुलाया गया। वेयर इज दिस मेन्स? जर्मनी, सॉरी इटली, या जर्मनी में है मेन्स। मिलान किधर है? जर्मनी में मेन्स है। मिलान किधर है? इटली में है। ओके, देन वॉर्सो किधर है बेटा? वॉर्सो किधर है? आपने पढ़ा है ना वॉर्सो के बारे में? नहीं पढ़ा पिछले क्लास में? पोलैंड। वॉर्सो किधर आएगा? पोलैंड में आएगा। तो यहाँ के सब लोगों ने इसको बड़े अच्छे से वेलकम किया था, लेकिन इनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब नेपोलियन गुड बॉय से बैड बॉय बन गया। क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया? तीन कुछ ऐसी चीजें की जो इन लोगों को अच्छी नहीं लगी। दैट इज फर्स्ट, ही इंक्रीज्ड टैक्सेशन। Now he will obviously think about the comfort zone about his own motherland, no? तो उसने वहां पे टैक्सेस क्या किया था? He had reduced there. बट ये दूसरे कंट्रीज में आकर उसने क्या कर दिया? इंक्रीज टैक्सेस। तो लोगों को अब ज्यादा पैसा टैक्स में भरना पड़ रहा था। उसने सेंसरशिप भी लगा दी। Now what is this censorship? अगर मैं रास्ते में खड़े रहकर नेपोलियन की बुराई का गाना गाना चाहती हूँ तो क्या मैं गा सकती हूँ नेपोलियन के टाइम पीरियड में? नहीं, क्योंकि उसने क्या लगा दिया है? सेंसरशिप लगा दिया। हाँ, अगर मैं नेपोलियन की अच्छाई वाला गाना गाना चाहती हूँ तो गा सकती हूँ क्या? हाँ, वो गा सकती। दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप। फिर उसके बाद उसने क्या किया बेटा? फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। व्हाट इज दिस नाउ? What is forced conscription? Yes, to take part in the French army. Now let's see. Empire. हाँ, तो बेटा आप कहाँ की हो? Let's take for example you are from Italy and you are from Germany. You are from let's take Poland. तो आप तीनों को क्या किया? नेपोलियन ने फोर्स कर दिया कि आर्मी ज्वाइन करो। अब आर्मी ज्वाइन करने के बाद आप अपने अपने कंट्री के लिए जान देना चाहोगे ना? यू विल लाइक टू डाई फॉर पोलैंड,
You will like to fight for Germany, you will like to fight for Italy, whichever country you belong to. लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं आप सब लोग आओगे आर्मी में और मेरे साथ लड़ोगे किसके लिए, फ्रांस के लिए, और वो भी क्यों, मैंने फोर्स किया इसीलिए, तो क्या आप लड़ोगे, क्या आप जान दोगे, बिल्कुल नहीं, भाग जाओगे, yes or no? So यही चीज हुई, ये तीनों के पॉइंट्स की वजह से क्या हो गया था, लोगों का विश्वास नेपोलियन से हट गया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई. अदर कंट्रीज व्हेन यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट कंट्री, ओके. और ये भी कैसा था, सबको कंपलसरी किया उसने, ऑल मेन हैड टू जॉइन आर्मी, ओके, दैट वाज नॉट वॉलंटरी. These days in India you have voluntary wishes, if you want you will join army, if you don't want you will not join, it's up to you. But उसने क्या कर दिया, he had made this a compulsory rule. इसके बाद जो कुछ भी अच्छाइयां वो ले आया था ना अंडर द नेपोलियनिक कोड, वो सारी अच्छाइयां क्या हो गई बेटा, फीकी लगने लग गई. और क्या सबसे ज्यादा आंख में चुभने लगा, ये तीन चीजें, जिसकी वजह से जो ये अलग अलग कंट्रीज थी लाइक ब्रुसेल्स, नीदरलैंड, हॉलैंड, इटली, मिलान, मेन्स, इन सबको क्या लगा, यार हमने तो गलती कर दी, हमारा जो राजा था मोनार्क वही सही था, हम ये किसको बाहर वाले को पकड़ के ले आए, इसने तो हमारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा क्या कर दी, खराब कर दी. ओके, so now we'll meet in the next class. I hope you have no doubts till here. Okay, online students, any doubts? No. Okay.